Hello everyone, this is Rishabh Jan. Welcome you again on our channel, Spursh Feel the Success. So guys, this is going to be the second part of our English grammar revision for class 9th and 10th. In the very first part, we discussed three questions related to the editing, right? And these are those three questions. If you have not watched that video, I would request you to go through that video and watch that once. Now, if you have gone through that video and you were waiting for this part, so without wasting time, let's begin with this. Okay, so now in question 4, we have find the error from the following paragraph and give the correction. हमें क्या करना है? This is the complete paragraph given to us. हमें यहाँ पे error find out करनी है. पूरे paragraph में कहीं पे भी हो सकती है. It might happen that in every single line you have 2 to 3 error and there may be some line जहाँ पे एक भी error आपको ना मिले. The only thing is that there are errors, we have to find it, right? Moving on. Uh, all right. So let's begin with that. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he comes into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing faint and fainter down the long road. So if you're in class 9th or even if you're in class 10th और आपको क्लास 9th का एक चैप्टर द लिटिल गर्ल अगर याद आ रहा हो तो आपने वहां पे केजिया नाम के गर्ल के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था। ये चैप्टर उसी चैप्टर में से एक पैराग्राफ लिया गया है और इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हमने हमारी साइड से ऐड किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू दैट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Now understand, fear is first form of verb, avoided is second. यहाँ पे fear नहीं आ सकता, it has to be changed, right? तो यहाँ पे चेंज तो करना है, क्या चेंज करना है वो हम बाद में करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको हाईलाइट कर लिया है, हमने इसको रेड कलर से मार्क किया। Every morning before going to work, he comes into her room and gave her a casual kiss. अगर आप समझेंगे तो we are talking about past tense was। तो यहाँ पे comes आ रहा है, तो यहाँ पे comes जो आ रहा है यहाँ पे भी मिस्टेक होनी चाहिए और यहाँ पे मिस्टेक है, तो हमने उसको भी यहाँ पे अभी मार्क कर लिया। Into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief. Now, ये जो मिस्टेक है बहुत से बच्चों को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे एरर है। वो क्या? There was a glad sense of relief. There was a glad sense of relief. ये इन्वर्टेड सब्जेक्ट का केस है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इन्वर्टेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहां पे वर्ब पहले आ रही होती है, सब्जेक्ट बाद में होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। जैसे आर्टिकल ए आया, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सिंगुलर के साथ वर आ सकता है? नहीं, वर नहीं आएगा। यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज आएगा एंड इट इज गोइंग टू बी एरर इन दिस। Was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going faint and fainter down the long road. Faint and fainter नहीं, fainter and fainter down the long road, right? तो हमने यहाँ पे 4 मिस्टेक्स मार्क कर ली है, 4 एरर्स हमने मार्क किया है। द फर्स्ट इज fear, सेकंड इज comes, थर्ड इज were एंड फोर्थ इज faint। अब यहाँ पे जो करेक्शंस हैं मैं वो यहीं पे ही लिखने वाला हूँ। fear का हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे feared, राइट? comes का क्या हो जाएगा? comes का हो जाएगा कि then next, and oh there was, were नहीं आएगा, क्या आएगा? Was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter। fainter मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। तो जिस कैरेज में उनके फादर ऑफिस जाया करते थे, उस कैरेज की आवाज जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो फेंटर क्यों यूज हुआ? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द साउंड कि पहले तेज थी, फिर धीरे हुई, फिर धीरे हुई और इस तरीके से धीरे धीरे होती ही चली गई। तो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। ये शायद हमने क्लास 3 और 4 में पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह की चीजें आप लोगों ने क्लास 3 या 4 में पढ़ी होंगी। एंड सेम थिंग यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को उस तरीके से यूज किया, राइट? आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया। 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन 4 हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे पास और हैं। वो क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट उनको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज्यादा नहीं, एक और दो पॉइंट जो हमने अभी किए भी हैं, जो हमने भी एग्जांपल्स किए हैं, फोर्थ एग्जांपल हमने किया, और जो प्रीवियस वीडियो में वन टू और थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने पिक किए हैं। क्या पॉइंट है यहाँ पे? जस्ट लेट्स रीड। ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल वर्ब्स। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब भी मॉडल वर्ब आपको देखने को मिले, आप हमेशा क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करिए, मे इज द मॉडल वर्ब, अगेन मे यहाँ पे भी मॉडल वर्ब है, यहाँ पे माइट, यहाँ पे मे, और यहाँ पे माइट। हमें सिंपली सिंपल चीज हमें क्या चेक करनी है कि जो मॉडल वर्ब आ रही है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। यहाँ पे मे के बाद विजिट आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इनकरेक्ट ओवर हियर। मे के बाद विजिटेड, ये भी गलत हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इनकरेक्ट ओवर हियर। ही माइट विजिटेड, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इनकरेक्ट ओवर हियर। ही मे विजिट अस टुडे, तो विजिट जो है वो V1 है, और द सेंटेंस इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली राइट। ही माइट विजिट अस टुडे एंड दिस इज अगेन एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि हमने मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज यहाँ पे किया। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बिकॉज इन एग्जाम इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, राइट? ये बहुत ऑफनली पूछा जाता है एग्जाम में, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आर्टिकल एरर मे बी देयर, जनरली हम लोग आर्टिकल्स की एरर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। आर्टिकल जो हमने ए एंड द आर्टिकल जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, क्लास फिफ्थ सिक्स सेवंथ में, और इवन आजकल नर्सरी एलकेजी में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि वोवल साउंड जो होता है ए आई ओ यू होता है, और उसके साथ आपको आर्टिकल एन का यूज करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया बच्चों को बहुत प्री क्लासेस में आजकल देना स्टार्ट कर दिया है इन चीजों का, राइट? बट वो मिस्टेक्स क्लास नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को मैंने करते हुए देखा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल जो क्लास में देखा वो क्या था, स्मारक वॉज अ एक्सपर्ट कुक, बच्चों ने ये सेंटेंस लिखा हुआ था, राइट? नाउ आई वाज amazed that if it is written expert cook and you are writing expert, it is clearly, this word is clearly starting with E, which is a vowel sound. Why it would be an A here? It should be N over here. Swaran was an expert cook. यहाँ पे A नहीं आएगा, it should be N. ठीक है? एक और कॉमन सी मिस्टेक, he saw a woman ghost. He saw a woman ghost. एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि सेंटेंस में क्या एरर है। अगर लेट्स सपोज कि एग्जाम में से कि इतना सा सेंटेंस आ जाता है, 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, और आपसे पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड जस्ट टेल द एडिटिंग इन द सेंटेंस, व्हाट विल बी द एरर यू विल बी मार्किंग? टेक पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप कि आपने पॉज करके आंसर लिखे होंगे। नाउ लेट्स सी क्या इसमें एरर है। He saw a woman ghost. हमने यहाँ पे ए यानी कि एक वुमेन के बारे में बात करी, और हमने घोस्ट नहीं लिखा है, हमने सिर्फ घोस्ट लिखा है, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन घोस्ट। तो अगर वन है तो यहाँ पे वुमेन होगा, विमेन होगा, या वो वुमेन, WOMAN होगा, बिकॉज WOMAN is singular and WOMEN is plural. These kind of mistakes also students do in class 9 and 10, right? So that's why I'm saying whenever you are writing answers, whenever you are doing grammar questions, whenever you are doing writing section questions, प्लीज बी अवेयर व्हाट यू आर राइटिंग। आप हर सेंटेंस में अपने बैक ऑफ द माइंड ग्रामर को चलाते रहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स इन योर जूनियर क्लासेस, राइट? ओके, so let's move to the next point. Always check the subject of the sentence, then check the verb accordingly. क्या कहा उन्होंने, बहुत ध्यान से समझो। ऑलवेज चेक द सब्जेक्ट, हमेशा जब भी आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या चीज चेक करिए, सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में। जनरली हम लोग सब्जेक्ट ही जज नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम सब्जेक्ट नहीं जज कर पाएंगे, हमें नहीं पता पड़ने वाला है कि वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब और वी आर गोइंग टू यूज द प्लूरल वर्ब। So the very first thing, the very first target which we should have is judge or check the subject. What is the subject of the sentence? Then check the verb accordingly. और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या भी सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एडजस्ट करना है, वर्ब भी एडजस्ट एडजस्ट करनी है। क्या मतलब इस बात का? That if the subject is singular, use singular verb. So if your subject is singular, you will use singular verb. And if the subject is plural, you will use plural verb. I hope you understand this point. This point. Now, understand it some example, and there are some questions based on this, on the same topic, on question number 3, on the point number 3, there are some questions based on that.
The manufacturer of these plastic items has no work ethics. नो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, एग्जाम में अगर उनको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज प्लास्टिक आइटम्स हैज नो वर्क एथिक्स, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक, दे आर जस्ट गोइंग टू मार्क दिस हैज, हाँ यहाँ पे हैज में एरर है, इसको हैव कर, क्यों कर दो हैव, क्योंकि दीज प्लास्टिक आइटम्स तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, यानी कि हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हमने वहां पे हैव कर दिया। जैसे ही आपने ये किया आपका आंसर गलत हो जाए, ऐसा क्यों, हैज ही यहाँ पे सही, ऐसा क्यों, एक बार इस पॉइंट को वापस से रीड करेंगे तो आपको समझ में, ऑलवेज चेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेक करिए। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। एक बार सेंटेंस को रीड करिए, द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज प्लास्टिक आइटम्स हैज नो वर्क एथिक्स, किसके वर्क एथिक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर के नहीं है या प्लास्टिक आइटम्स के वर्क एथिक्स नहीं है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लास्टिक आइटम्स के कभी भी वर्क एथिक्स नहीं हो सकते, दे आर नॉन लिविंग बीइंग्स, राइट, सो द सब्जेक्ट हियर इज नॉट द प्लास्टिक आइटम। इस केस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर। इस केस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उस केस के हिसाब से हैज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, आपको वहां पे हैज को हैव करने की नीड नहीं थी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, द वन हु इज एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हम किसके वर्क एथिक्स की बात कर सकते हैं, आप सोचिए, क्या प्लास्टिक आइटम कैन बी अ पेन, आपका पेन जो है वो प्लास्टिक आइटम है, आपके टॉयज हो सकते हैं, तो क्या उनके कुछ पर्सनल वर्क एथिक्स होंगे, क्या आपके टॉयज के वर्क एथिक्स होते हैं, क्या आपका पेन का कोई वर्क एथिक्स है, नहीं। बट ह्यूमन बीइंग जो मैन्युफैक्चरर है, शायद जो जिसने इन पेन को बनाया वो, या इसके टॉयज बनाए हैं वो, उनके वर्क एथिक्स हो सकते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरर हियर, नॉट द प्लास्टिक आइटम्स। और जब हम मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करेंगे तो वो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास में यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, 3 to 4 क्वेश्चन हैं, आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन को आपको अभी ट्राई, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई दीज क्वेश्चन, ठीक है, yes, pause the video and try to answer these questions. First two are the editing and the next two are your fill in the blanks. ठीक है, पहले दो जो है वो आपकी एडिटिंग थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, और लास्ट के जो दोनों है 3 और 4, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, हैज और हैव दोनों में ऑप्शन है, आपको सर्च आपको बताना है आंसर ये क्या होगा। यू हैव 2 मिनट्स, पॉज द वीडियो, राइट द आंसर इन योर शीट एंड देन आप वापस से प्ले करके चेक करें। ऑल राइट, आई होप कि आप लोगों ने सर्च किए हो, आंसर्स करने की कोशिश किया होगा, ट्राई किया होगा। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ। देयर हैव बीन अ 37% इंक्रीज इन पीपल सीकिंग काउंसलिंग, समझिएगा। सब्जेक्ट क्या है, हम सबसे पहले वो चेक, ये इन्वर्टेड सब्जेक्ट का केस है। इन्वर्टेड सब्जेक्ट क्या, जहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, सब्जेक्ट बाद में आया और 37% इंक्रीज। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी परसेंट की बात होती है, जब भी परसेंटेज में नंबर आ रहा है, ऑलवेज टेक इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। और 37% इंक्रीज तो आपका सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हैव की जगह हैज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। क्या लिख दिया कि हैव जो है वो किस में चेंज होगा, हैव जो है वो किस में चेंज होगा, हैज में चेंज होगा, यहाँ पे जो हैव यूज हुआ हुआ है दैट विल चेंज इनटू, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन, द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ एरियाज विद इन माइक्रोनेशिया वेराई डिपेंडिंग ऑन द आइलैंड। माइक्रोनेशिया इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि उससे कंफ्यूजन है, आप कुछ भी नाम ऐड कर दीजिए, आप अपनी सिटी का नेम ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। The political control of areas within Micronesia vary depending on the, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है, पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में बात करी जा रही है, किसके बारे में बात करी जा रही है, पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में बात करी जा रही है। पॉलिटिकल कंट्रोल सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंट्रोल्स नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं हम,
तो वर्ब के साथ क्या लगा दिया जाता है, एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो दिस वेराई विल चेंज इनटू वेराई। ठीक है, ओके। नाउ दिस वन इज बिट डिफिकल्ट। सेकंड वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शायद आप लोगों के लिए। एग्जाम में आपसे इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। तो टेंथ के लेवल की अगर हम बात करें तो टेंथ में इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछता है जो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट वाले लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, सेकंड वाला आपको नहीं भी समझ में आता है, पैनिक नहीं करना कि मुझे को समझ में ही नहीं आ रहा, नो इश्यूज। इस तरीके की ये थोड़ा सा हाई लेवल है। एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो आपका बेस्ट ट्राई क्या होना चाहिए, आप जो वहां पे बेस्ट पॉसिबल आंसर सर्च कर आ पा रहे हैं उसको टिक करके आइए। तो फाइन, उसको उस आंसर को मार्क करके आइए। दैट्स इट, यू कैन। ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स के पेपर में हम 1 और 2 मार्क्स को लेकर के पैनिक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा 78 to 79 मार्क्स का पेपर दूसरा है। ठीक है, इन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको साइड करें और आगे बढ़ें। ठीक है, बट अगर ऐसा आता भी है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पॉलिटिकल कंट्रोल था सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो वेराई के साथ हमने क्या लगा दिया, वाई हटा करके आईएस। ठीक है, okay. Going on to the next sentence, the construction of coastal roads and highways dash severely damaged coastal ecosystems in the state. जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसने क्या किया है, सीवियरली डैमेज कर दिया है कोस्टल इकोसिस्टम को स्टेट के अंदर। अब आप समझे और मुझे बताइए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या वो रोड्स एंड हाईवेज है? नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी जा रही है। और जब कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगा या हैव आएगा? बहुत सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आंसर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, हैज बनने वाला है, ना कि। ठीक है, आंसर विल बी हैज नॉट। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो कंस्ट्रक्शन था, ऑन दैट बेसिस हमने सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पे। नेक्स्ट वन, देयर डैश बीन एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ थेफ्ट एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वैल्यूएबल आर्ट। किस बारे में बात कर रहा है मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे देखा देयर डैश, यानी कि ये इन्वर्टेड सब्जेक्ट का केस है। इन्वर्टेड सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बाद में सब्जेक्ट आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न, एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न सिंगुलर है या प्लूरल है, पैटर्न सिंगुलर हुआ। एन भी आ रहा है, आर्टिकल ए या एन जब भी देखने को मिले ऑलवेज रिमेंबर कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बात करें। तो दो कैस दो दो हिंट मिल गए, टर्न सिंगुलर है, पैटर्न्स होता तो प्लूरल, और यहाँ पे तो आर्टिकल एन भी आ रहा है तो ये सिंगुलर ही होना। तो हमने क्या लिखा, अगर ये सिंगुलर है तो हैज आएगा या हैव आएगा, सबको पता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे हैज आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई, राइट? सो आई फ्रॉम माई साइड आई हैव कवर्ड बेस्ट पॉसिबल थिंग्स। सी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जो हम क्लास सेकंड से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्लास 9th और 10th में पूरा समराइज कर दिया जाए। दैट इज बट डिफिकल्ट टास्क, बट व्हाट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट इज दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो 9th और 10th में पूछे जाते हैं, स्पेशली 10th बोर्ड में जिसके क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक्स को मैंने कवर करने का बेस्ट पॉसिबल ट्राई यहाँ पे किया है, राइट? होप आई होप कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है एडिटिंग, गैप फिलिंग और ग्रामर के कॉन्सेप्ट को लेकर के वो शायद पहले से थोड़ी सी बेटर हुई होगी। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड फ्यू वीडियोस, कुछ वीडियोस मेरी लास्ट ईयर की और लास्ट एकेडमिक ईयर की भी हैं। तो आप उन वीडियोस को भी एक बार गो थ्रू करिए, आप इन वीडियोस को भी गो थ्रू करिए, और अगर आपने सारी वीडियोस गो थ्रू कर ली है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर ग्रामर सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू विल डू वंडरफुल इन योर एग्जाम। Thanks for watching this video. If you liked it, please do share it with your friends who are in class 9th and 10th only. And please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.